Hello students, this is the first lesson of second semester, that is lesson number 11, cell structure and microorganism. In this lesson we are going to see about the structure of the cell and also the structure of the microorganisms. Now the total lesson, this lesson number 11, I am going to divide into 3 parts, means total 3 videos will be prepared. In the first video, the point of cell, then measurement and observation of cells, and cell size. These 3 points will be covered in the first video. In second video, about microorganisms, then occurrence of microorganism, observation and measurement of microorganisms, and nature of microorganisms, growth of microorganisms. These 4 points will be covered in second video. And in the third video, useful microorganisms, harmful microorganisms, and pathogens, disease producing microorganisms. These 3 points will be covered in the third video. Means total I am going to prepare 3 videos of this lesson. Okay, let us start with the point. First, let us recall point is that what is the name of the minute components of which the body of a living organism is made? Okay, in 6th standard we have learned that every living thing, even non-living thing, are made up of the minute components. Non-living things are made up of the minute components, that is called as atoms and molecules. The same way the living things are made up of the minute component, that is called as cell. उसको सबसे छोटा, अपने लिविंग थिंग का सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो होता है अपने बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं? सेल. Second question is asked, is the number of these smallest units the same in the bodies of all living organism? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल का नंबर सेम होता है क्या? तो नहीं होता. जैसी जिसकी जितनी बॉडी बड़ी है उतने सेल्स ज्यादा, जिस एनिमल की बॉडी जितनी छोटी है उतने सेल्स कम होते हैं. ओके, तो एवरेज ह्यूमन बीइंग में कितने सेल्स होते हैं? नॉर्मली एक एवरेज निकाला तो 3 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. 3 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. ओके, यानी 3 पर कितने जीरो? 12 zeros. That many cells are present in the human body. Average बोल रहा हूं. ओके, सो एलिफेंट में तो बहुत, उससे भी बहुत ज्यादा. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे एमीबा, पैरामोशियम वगैरह, ये तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स बोलते हैं उनको. यूनिसेल्युलर यानी उनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है, यानी उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है. That is called as unicellular animals. Okay, let us move to the point, that is cell. Okay, so we have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organisms, and that the cell is the fundamental structural and functional unit of living things. Okay, in 6th standard we have learned that about the cellular organization. ओके, और ये क्या होता है? इट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ओके, उनके अंदर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेल एक दूसरे के साथ काम करते हैं. ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, यानी सेल के बिना अपनी बॉडी बनती ही नहीं है और काम करेगी भी नहीं. ओके, and that a cell is the fundamental structural and functional unit of living things. और इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, किसका बना है? सेल्स का बना है. सो इट इज कॉल्ड एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. उसके अंदर सेल सबसे छोटा और इंपॉर्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल. ओके, वो कैसा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी वो अपने बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? सेल की वजह से मिलता है. अपने बॉडी के अंदर जितने भी सारे फंक्शन चलते हैं, यानी हम लोग सोचते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, ओके, ये जो सारे होते हैं वो किसकी वजह से होता है? ओनली बिकॉज ड्यू टू द सेल्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल, यानी इंपॉर्टेंट. ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी जो स्ट्रक्चर भी देता है, जो फंक्शन भी कंप्लीट करता है. सो इट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ living organisms. Here one chart is given, complete the flow chart.
डैश इज गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस, देन ब्लैंक इज गिवन चैप्टर्स एंड बुक्स. क्या कर सकते हैं इधर? वर्ड्स किसके बने होते हैं? अल्फाबेट के बने होते हैं. तो यार अल्फाबेट, अल्फाबेट के बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स के बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के बनते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ का बनते हैं चैप्टर्स, एंड चैप्टर के बनते हैं बुक. Right? So in this way, the same way, even in our body also same structure is there. How it is that we will discuss it. Then we see the structural organization of a book in the above flow chart. Similarly, there are organizational levels in living organisms too. These are cells, tissues, organs, organ systems, and organism. Okay? तो ये जैसा ऊपर का फ्लो चार्ट दिया है वैसे अपने बॉडी के अंदर भी क्या होता है? सबसे छोटा होता है सेल. ओके, बहुत सारे सेल्स का बनता है टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज का बनते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स का बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी. ओके, यानी सबसे छोटा का है क्या है? सेल. अगर सेल नहीं है तो कुछ नहीं है. तो सेल्स फॉर्म द बेसिस of the structure and function of all living organisms. It is only with the help of the cells that living organisms carry out all their different processes. Okay, तो हमारे बॉडी का यानी कौन सा भी लिविंग थिंग है, नॉट ओनली वी, ओके, कौन सा भी लिविंग थिंग है उसके बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है तो वो कौन सा है? दैट इज सेल. एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सेल आवर बॉडी इज एबल टू कैरी आउट ऑल द different life processes. Life processes yani many systems are working. Excretory system is working in our body, digestive system is working, okay, nervous system is working, many systems are working. तो इनको बोलते हैं life processes. Okay, respiratory system is working, many are there. Then all these life processes are working only because of the cells. Use your brain power. Where do the life processes of unicellular organisms take place? ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस कहां पर चलती है? ओके, तो वो उसी क्यों हमें मालूम है यूनिसेल्युलर एनिमल जैसे अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना वगैरह, ओके, इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है. अगर एक ही सेल की बनी होती है तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. अगर एक फैमिली है, ओके, उनके पास एक ही रूम का घर है, ओके, तो उनका सारा के सारे जो भी है, ओके, वहीं पर खाना पड़ेगा, वहीं पर उनका बाथरूम भी वही होगा, ओके, वहीं पर उनको सोना पड़ेगा, वहीं पर उनका स्टडी रूम होगा, वहीं पर उनका हॉल होगा, ओके, डाइनिंग रूम भी वहीं पर होगा, किचन भी सेम. ओके, सो वी कैन से दैट यूनिसेल्युलर, दैट इज एक ही रूम में चलता है. ओके, उसके कंपैरिजन में ओके, कुछ लोगों के घर में 4 रूम होते हैं, 5 रूम होते हैं, 6 रूम होते हैं, तो उनका किचन अलग होता है, ओके, लिविंग रूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, ओके, बेडरूम अलग होता है. ओके, द सेम एग्जांपल इवन वी कैन कंसीडर हियर. ओके, तो यूनिसेल्युलर में एक ही सेल के अंदर सारे काम चलते हैं. मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं. ओके, तो बहुत सारे सेल्स अपना अपना काम करते हैं. ओके, हियर पिक्चर इज शोन सेल. बहुत सारे सेल का बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू का बनता है ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स का बनता है ऑर्गन सिस्टम. ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम से अपना बॉडी बनता है. राइट, नाउ लेट अस टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw hexagonal compartments like those of a beehive. He named those compartments cells. This term is derived from the Latin word cella, which means small room. Okay, 1665 में, how many years before? Okay, near about 400 years before. पूरे 400 नहीं, लेकिन उसके आसपास. Okay, 350 years. ओके, इतने साल पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कॉर्क का टुकड़ा ओके ऑब्जर्व किया. ओके, उसके अंदर उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ओके, और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल, यानी सेला, लैटिन नेम है सेला, यानी छोटा सा रूम. ओके, देन आफ्टर 200 years near about, okay, the two scientists M.J. Sladen and Theodor Schwann formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental component of living thing. Okay, in 1838.
ओके, यानी नियर अबाउट 200 years बिफोर, ओके, ये दोनों साइंटिस्ट ने लिख कर दिया, ओके, दे फॉर्मुलेटेड एज थ्योरी, यानी उन्होंने पुटअप किया गवर्नमेंट के सामने, लोगों सबके सामने, क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। एंड द सेल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग थिंग, यानी अगर सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सेल नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पूरे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। Then in 1885, Rudolf Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cells. Okay? तो उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि सारे के सारे सेल जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो पहले अपने बॉडी में जो सेल है उसकी मदद से दूसरे सेल बनते हैं। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। ओके, उससे पहले ये राइट साइड में जो पिक्चर दिखा है वो देखो, तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा, व्हाट इज इट? माइक्रोस्कोप। कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप है? नीचे नाम दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो इससे एक सिंपल होता है, उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक होता है, और इससे बहुत बड़ा वाला एक जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता नहीं किसी स्कूल में कॉलेज में नहीं होता है, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में होता है, साइंटिस्ट लोगों के पास होता है। ओके, और उसका हमें कुछ काम भी नहीं है। Okay, so let us study about the measurement and observation of cell. In 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe live bacterial and protozoan cells under the microscope. 1673 में एक साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंटोन वैन लीवेनहॉक। ओके, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे लेंसेस, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं, कॉन्केव लेंस हो सकते हैं, ओके, जैसे जिसकी जहां पर जरूरत पड़ी है ऐसे लेंसेस अरेंज करके, कंस्ट्रक्ट करके क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, बहुत बड़ा होगा बनाया होगा उन्होंने। एंड देन दैट टाइम ही ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, जो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देती आंखों से, ओके, कितने छोटे होते हैं? बहुत सारे, बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो उन बैक्टीरियाज को किसने देखा था? उस साइंटिस्ट इन 1673, ओके, विद द हेल्प ऑफ lenses. Then cells are extremely minute in size. We cannot see cells with the naked eye. Micrometer and nanometer are the units used for measuring their sizes. The compound microscope is used for observing cells. An object on a glass slide magnifies many times by the lenses of this microscope. Okay, तो ऐसे जो होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ऐसे सेल्स नहीं तो अपने बॉडी के सेल्स वगैरह, ये देखने के लिए किसकी मदद ली जाती है? दैट इज माइक्रोस्कोप। ओके, क्यों? बिकॉज द सेल्स आर वेरी मच माइन्यूट इन साइज, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ओके, यानी उनकी साइज कितनी होती है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में। ओके, अब ये जो कोविड का ये जो है, ओके, उसकी साइज कितनी? 500 माइक्रोमीटर। ओके, वो नैनोमीटर में नहीं है, माइक्रोमीटर में। इसीलिए वो अपना मास्क भी लगाए मुंह को तो भी उससे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है थोड़ी सी। ओके, अगर उसकी साइज अगर नैनोमीटर में होती तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। ओके, लेट अस कम टू आवर पॉइंट। एंड दिस माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर, व्हाट इज दिस साइज? ये साइज कितनी होती है? दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, वो डायरेक्टली कितना मेजरमेंट कैसा है उससे ही देखेंगे हम लोग। और ये सब देखने के लिए किसकी मदद ली जाती है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी सी छोटी चीज हमें वो बड़ी सी बड़ी करके दिखाता है। जैसा हम लोग मोबाइल जूम करते हैं, मोबाइल का स्क्रीन, टच स्क्रीन अगर है तो वो अगर हम जूम करते हैं तो जैसा बड़ा होता है ऐसा बड़ा करके दिखाता है। कितना बड़ा करके दिखाता है? मेनी टाइम मीन्स मिलियन टाइम्स मोर। ओके, तो वो बहुत बड़ा साइज दिखाता है। ओके, then the compound microscope is used for observing cells. An object on a glass slide magnifies many times by the lenses of this microscope. Okay, तो उसके लिए जो ये होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, ओके, इल्यूमिनेटर एंड नीचे से लाइट लगाने के लिए होता है, लगाने के लिए लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है उस पर। तो इसकी मदद से हम लोग छोटे सी छोटी चीज बड़ी करके देखते हैं। ओके, अब देखते हैं साइज का कैसे।
1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की कंपास में स्केल होगा। ओके, स्केल पर देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, उसके अंदर 10 पार्ट्स होते हैं, वो एक पार्ट को बोलते हैं मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो उसमें से 1 मिलीमीटर ले लो। ओके, उस 1 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करो। ओके, तो उसका बनता है 1 माइक्रोमीटर। यानी अगर 1 मिलीमीटर को अगर 1000, उसके कितने पार्ट्स करने हैं 1000, तो वो बनते हैं माइक्रोमीटर्स। ओके, तो उसका एक पार्ट लिया तो दैट इज कॉल्ड एज 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को 1000 से डिवाइड करो, मिलता है 1 नैनोमीटर। यानी देखो 1 सेंटीमीटर, उसके 10 पार्ट्स मिलीमीटर, बहुत छोटा हो गया नाखून के साइज का, 2 नाखून के साइज का समझो। ओके, उसको 1000 से डिवाइड करो, फिर उसके एक पार्ट को फिर से 1000 से डिवाइड करो, देन द साइज बिकम्स नैनोमीटर। ओके, तो कितना छोटा होगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। लेट अस ट्राई दिस। अब ये ट्राई एक्टिविटी, ये तो ओरली पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपना ओनियन है, खाने की चीज, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब ये उसका एक एक लेयर निकालते हैं हम लोग। ओके, तो दोनों लेयर के बीच में एक ऐसा मेम्ब्रेन दिखाई देता है। ओके, ओनियन का। तो उस लेयर को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखते हैं तो ये जो फिगर दिखाई है डी फिगर, ओके, उसके जैसे दिखाई देता है, यानी वो भी सेल्स का बना होता है। एक तो इतना इतना बहुत सारा पतला होता है, वो भी बहुत सारे सेल्स का बना होता है। ओके, लेट अस रीड। Take a piece or segment of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of the forceps. Place the membrane on the glass slide and put a drop of water on it. Take care that the membrane does not get folded while placing on the slide. Put a drop of a dilute solution of iodine or eosine over it and observe under the 10 times objective of the compound microscope. Don't forget to put a cover slip over the onion skin on the slide before placing it under the microscope. करना क्या है, ओके, ओनियन के दो लेयर के बीच में जो ऐसा एक मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन ठीक तरह से निकालना है, फोल्ड होने देना नहीं। ओके, फोरसेप से निकालना है, फोरसेप होता है लैबोरेटरी में होता है, उसकी मदद से निकालना है, और एक ग्लास स्लाइड पर रखना है, एक कागज कांच का जो होता है स्लाइड, उस पर रखना है। ओके, उसके ऊपर थोड़ा पानी का एक ड्रॉप डालना है। ओके, और उसके ऊपर और क्या डालना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, या तो आयोडीन डालना है, नहीं तो यूसिन डालना है। ओके, यानी वो सूखता नहीं है जल्दी, वो उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर उनको जिंदा रखता है ज्यादा टाइम, ये आयोडीन और यूसिन। एंड वी हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको भी कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो 10 टाइम्स वाला। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द कवर स्लिप, उसके ऊपर एक पतला सा एक कांच का टुकड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड कवर स्लिप, वो उसके ऊपर रखना है, यानी उसको वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एंड देन यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ऐसा ये डी का जो फिगर है वो ऐसा दिखाई देगा। In the same way, observe the cells from various parts of plants like leaves, bark, root tips, etc. Do you remember that last year you had observed the amoeba and paramecium that are found in water? 6th standard में आपने देखा होगा, आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको दिखाया होगा कि इफ यू टेक सम वाटर फ्रॉम द पडल, ओके, गटर वगैरह, उससे अगर वहां से पानी लेते हो, उसका एक बूंद अगर कांच पर रखो और वो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जर्व किया तो बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दिखाई देंगे, ऑफ द एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामोशियम। Here can you tell activities there, books my friend, here activities there, okay, go through it, complete it. Can you tell का डिस्कस करते हैं। Are the cells that you observed all alike? जितने भी सारे सेल्स अब तक हमने ऑब्जर्व किए हैं, ओके, सारे एक जैसे हैं क्या, नहीं होते हैं। व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो जैसी जिसकी जरूरत वैसा स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट आर देयर शेप्स, शेप्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, दैट इन डिटेल नाउ वी विल सी डाउन। सेल साइज, ये देखो आ गए, ओके, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज। सेल साइज, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन शेप्स ऑफ सेल्स, देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। ओके, शेप किस पर डिपेंड करता है, जैसा जैसा फंक्शन वैसा शेप। ओके, तो एक देखो लोखंड की चीज है, अब देखो लोखंड की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जैसे हथियार की जरूरत होती है वैसा उसका शेप होता है, यानी जैसा फंक्शन वैसा शेप।
ऐसा ही सेल का भी ऐसा ही है, जैसा उसका फंक्शन है वैसा उसका शेप। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिफरेंट शेप्स। ओके, ये देखो अमीबा, यूनिसेल्युलर एनिमल, एक ही सेल का बना होता है, उसका शेप देखो। रेड ब्लड सेल्स, अपने ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका शेप देखो। ये सरफेस सेल्स यानी अपने स्किन जो होता है ऊपर का बाहर का कवरिंग, ओके, तो उनको बोलते हैं सरफेस सेल्स, तो उनका उनके शेप देखो। ओके, ये मसल सेल्स, अपने बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उनका शेप देखो सेल्स का। ओके, ये एक सेल, इट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसका शेप देखो। फैट सेल, अपने स्किन के नीचे जो चर्बी चर्बी जमा होती है, फैट सेल्स, ओके, तो उसका शेप देखो। ये स्पाइरोगायरा, यूनिसेल्युलर एनिमल, उसका शेप देखो। यहाँ पर देखो नर्व सेल, यानी अपनी ब्रेन से रिलेटेड जो है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, यानी मैसेज लेकर जाना, मैसेज लेकर आना ब्रेन को, ओके, वो जो काम करते हैं वो कौन से सेल्स करते हैं, ये नर्व सेल्स करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ओके, तो ये न्यूरॉन का शेप ऐसा होता है। अपना बोन्स भी अपने सेल के बने होते हैं, तो बोन का सेल ऐसा होता है। ये स्पर्म विच इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, तो स्पर्म का शेप ऐसा होता है। तो जैसा जिसका फंक्शन वैसा उसका शेप, ओके। सारे सेल्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और वो शेप और साइज किस पर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। Cells are of many different shapes. Example: circular, rod shape, columnar, spiral, oval, rectangular, etc. All this we have discussed just now. Each cell contains various components for carrying out the life processes of the living organisms. These components are called organelles. Okay? हर एक सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, किस लिए, वो यानी उसको जो फंक्शन दिया है, उसको जो काम दिया है, वो काम पूरा करने के लिए उसको कोई तो भी चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दैट वी विल सी डाउन साइड, ओके। यानी उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा होता है। थोड़ा टाइम मैं बोलता हूँ मटेरियल बोलता हूँ, थोड़ा टाइम, ओके, तो उसको ही क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या काम करते हैं, वो जो सेल को जो फंक्शन दिया है, वो सेल का फंक्शन पूरा करने के लिए कौन मदद करता है, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। These organelles are studied in detail with the help of electron microscope, which can magnify images up to 2 multiplied by 10 raised to 9, that is 2 billion times their actual size. ओके, और ये सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी किसकी मदद से किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपने स्कूल में कॉलेज में जो होता है वो कौन सा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। ये इससे बहुत पावरफुल है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कितना पावरफुल है, यानी अगर एक कौन सी भी एक चीज अगर उसके उसके उस पर रख दी, तो वो उसको कितने टाइम्स बड़ा करता है, वो 2 बिलियन टाइम्स। 2 बिलियन टाइम्स यानी 2 पर कितने जीरो, 9 zeros, ओके, दैट इज कॉल्ड 2 बिलियन, नॉट लैक्स एंड करोड़, मीन्स यानी 2 पर 9 जीरो लिखो, यानी यूनिट टेंस 100,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड देन आफ्टर दैट, ओके, तो उतने, दैट इज कॉल्ड 2 बिलियन। इतने इतने टाइम्स उसको बड़ा करता है, ओके। लेट अस मूव नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ओके। एनिमल्स के सेल्स थोड़े से अलग होते हैं, प्लांट्स के सेल अलग होते हैं, ओके। दोनों भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट्स के सेल अलग होते हैं, एनिमल्स के सेल अलग होते हैं। क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स खुद खाना बनाते नहीं है, प्लांट्स अपना खाना अपना खुद बनाते हैं, ओके। दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, ओके, उनका खाना वो खुद बनाते हैं, एनिमल्स ऐसे नहीं, इसलिए थोड़े उनके सेल्स में थोड़े से चेंजेस हैं। These cells consist of various types of membrane-bound cell organelles. Plant cells have a definite shape due to the presence of cell wall around them. Besides, unlike animal cells, plant cells contain single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cell. Okay? तो मेन फर्क क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इधर देखो, ये जो है ये प्लांट सेल है, ये जो है ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है, ऊपर का सबसे बाहर का कोटिंग देखो, ये सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में बाहर से होता नहीं, ओके। सेल वॉल होता नहीं एनिमल सेल को, सिर्फ वो किसको होता है, प्लांट सेल को होता है, ओके। एनिमल सेल का सबसे बाहर का कोटिंग जो होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ओके।
उसको इसको भी कोटिंग होता है लेकिन बहुत पतला होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, यानी प्लांट सेल में देखो सेल मेम्ब्रेन 2 नंबर की जगह पर है, उसके बाहर क्या है, सेल वॉल है. ओके, और क्या पॉइंट दिया है, ओके, प्लांट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल. ओके, ये देखो प्लांट सेल का अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो प्लांट सेल में ये वैक्यूल, ये जो होता है व्हाइट कलर का डॉट है, इधर देखो व्हाइट कलर का डॉट, तो एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है. ओके, उसका रीजन भी है, उसकी जरूरत है उसका, जैसा मैंने बोला जिसका जितना जैसा फंक्शन वैसा उसका शेप और साइज. ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, अब इनका देखते हैं क्या चेंज है. अब देखो प्लांट सेल में अगर देखा तो बाहर से सबसे एक नंबर पर क्या होता है, सेल वॉल, उसके नीचे जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो है वो साइटोप्लाज्म. ओके, तो साइटोप्लाज्म होता है, और वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द जेल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोसोल नाम का जो फ्लूइड होता है वो होता है. ओके, इसलिए उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. किस लिए होता है, ये जो इसके अंदर जो सारे बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनकी मूवमेंट ठीक तरह से होनी चाहिए, इधर उधर जाना वगैरह, ये मूवमेंट ठीक होने के लिए ये साइटोसोल नाम का फ्लूइड होता है, इसीलिए उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है, यानी आने जाने के लिए ठीक तरह से रास्ता तैयार करना वगैरह. ओके, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब ये क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को एनिमल सेल में दिखाई नहीं देगा, प्लांट सेल में क्यों होता है, बिकॉज प्लांट सेल प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन. ओके, और क्या होता है, गोल्गी बॉडी होती है, और क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं. ओके, ये देखो डॉटेड डॉटेड जो है ये सारे राइबोसोम्स है. ओके, एंड डॉटेड पार्ट छोड़कर ये जो ग्रे कलर का पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म. ओके, और क्या होता है, गोल्गी बॉडी दैट वी हैव डिस्कस. देन न्यूक्लियस होते हैं. व्हाट इज दिस न्यूक्लियस, जैसा अपना ब्रेन होता है, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. ओके, हमने क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या करना है, ये कौन कंट्रोल करता है, दैट इज आवर ब्रेन. ओके, द सेम वे ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के नीचे देखो उसको अटैच क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, उसका एक अपना काम है. ओके, एंड देन दिस वैक्यूल, वैक्यूल के यहाँ पर नीचे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसिंग. ओके, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, जितने अपना बॉडी में जितनी भी एनर्जी तैयार होती है वो बनाने वाले कौन है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया. अब एनिमल सेल का देखते हैं. ओके, फ्री राइबोसोम्स तो है, ये लाइसोसोम्स एक्स्ट्रा है, ये लाइसोसोम्स इसमें नहीं होता, प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है. सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, गोल्गी बॉडीज दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन बोथ, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी होती है. ओके, दोनों को भी एनर्जी की जरूरत है. ओके, तो एनिमल सेल में ज्यादा क्या है, लाइसोसोम्स, प्लांट सेल में ज्यादा क्या है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट. ओके, गॉट इट. चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द सेल हैज 4 मेन पार्ट्स. ओके, एक सेल कौन सा भी सेल हो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स 4 होते हैं. कौन सा, सेल वॉल. अब ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता नहीं. देन सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल वॉल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे बाहर होता है, प्लांट सेल में 2 नंबर पर होता है. उसके अंदर साइटोप्लाज्म. ओके, जो हमने एज आई डिस्कस साइटोसोल नाम का फ्लूइड. ओके, वो साइटोप्लाज्म, और उसके बीच में जो बसे है वो सेल ऑर्गेनेल्स, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल. ऐसे 4 मेन पार्ट्स होते हैं. वन बाय वन पार्ट वी विल डिस्कस नाउ. सेल वॉल, क्या है सेल वॉल, द सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल. इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. ओके, सेल वॉल क्या होता है, ये सबसे बाहर का कवरिंग होता है सेल का, और वो किस में होता है, ओनली इन द प्लांट सेल्स. वी हैव डिस्कस्ड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वी हैव डिस्कस्ड मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग. इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, डेलिकेट होता है. ओके, वो दोनों में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है. ओके, लेकिन प्लांट सेल में दूसरे नंबर पर होता है, एंड एनिमल सेल में इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द
एनिमल सेल, राइट। तीसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, बस एक फ्लूइड है, उसका बाकी ज्यादा कुछ काम नहीं है। ओके, द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, उसको कुछ काम कुछ नहीं है, उसने क्या काम करना है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, बस कुछ नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जितनी भी खाली जगह है, ओके, वैक्यूल छोड़कर, वो सारी जगह कौन ऑक्यूपाई करता है, साइटोप्लाज्म। और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। देन सेल ऑर्गेनेल्स, these mainly include the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. ये सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, और वो अपना अपना काम करते हैं, हर एक को अपना अपना काम दिया है, बिना काम के कोई नहीं होता। प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल पिगमेंट्स, produce food in the presence of sunlight। ओके, देन दैट इज उसको भी बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती है। ओके, देन व्हिच आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, कॉमन कंपोनेंट्स तो ऊपर दिए हैं, व्हिच आर द डिफरेंट वंस। ओके, ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसा अपने बॉडी में या ब्रेन इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक सेल में कौन सा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस। देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट, उसको डबल कोटिंग होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है उसके साइड में, लेकिन कैसा होता है, पोरस। पोरस है ना, जैसा अपना स्पंज का होता है वैसे। ओके, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल्स, और न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। The endoplasmic reticulum is a sprawling net-like organelle. Its function is to make necessary changes in the proteins produced by ribosomes and send them to the Golgi bodies. Okay? न्यूक्लियस तो सबको कंट्रोल करता है, उसके नीचे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ एक ही है कि थोड़े से जो चेंजेस करने हैं, किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। ओके, ये प्रोटीन्स कौन तैयार करता है, राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम जो प्रोटीन्स तैयार करता है, वो उस प्रोटीन्स में थोड़े से कुछ चेंज करने हैं, और वो चेंज करके किसको देना है, टू द गोल्गी बॉडीज। फिर गोल्गी बॉडीज क्या करता है, गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स, देयर फंक्शन इज टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। और ये गोल्गी बॉडीज जो प्रोटीन्स उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसको कितने प्रोटीन चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये काम किसका है, गोल्गी बॉडीज। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स विद डबल आउटर कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, प्लास्टिड्स भी होते हैं, उनको डबल कवरिंग होता है। ओके, एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी में। हम लोग बोलते हैं मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी कौन तैयार करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने बताया, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती है, ओके, वो काम क्या करता है, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। और जो हमने देखा था, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, उसका काम क्या है, जो जितना भी सारा वेस्ट मटेरियल तैयार होता है सेल के अंदर, उसको बाहर फेंकने का काम किसका, वैक्यूल्स का। Vacuoles in animal cells are small, whereas it is large vacuole in the plant cell. Animal cell के अंदर छोटा होता है, plant cell के अंदर बड़ा होता है, क्योंकि उधर जरूरत है उनको। Okay, here use your brain power. 3 questions are there. Okay, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कहाँ चेक करना है, ऑनलाइन चेक करना है, गूगल पर सर्च करो, इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ हियर आई विल स्टॉप द वीडियो हियर, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ओके, सो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, दिस इज फर्स्ट वीडियो, इसके बाद और 2 वीडियो बनने वाले इस लेसन की। ओके।